ایمان کے خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دلیر خاتون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم و جبر سے بچایا، لیکن جب وہ خاتون اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، فرعون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کی عظیم ترین عورت کا لقب دیا گیا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ فرعون تاریخ میں وہ ظالم بادشاہ گزرا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس کے ظلم کی داستانوں سے تاریخ اوراق بھرے پڑے ہیں۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر بڑے ظلم ڈھائے، اپنی باندی اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر ان کو شہید کر ڈالا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے تکبر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ اس کی حکومت کو نیست و نابود اور تہس نہس کر ڈالا اور رہتی دنیا تک کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا کے یہ ثابت کر دیا کہ تکبر کا انجام صرف بربادی ہے اور تکبر صرف اللہ کی چادر ہے۔ فرعون کے محل میں ایک عورت فرعون کی بیٹیوں کے بال سنوارا کرتی تھی۔ ایک بار فرعون بیٹی کے بال سنوار رہی تھی کہ ان کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو انہوں نے اللہ کا نام لیا۔ جب اس باندی نے اللہ رب العزت کا نام لیا تو فرعون کی بیٹی سمجھ گئی کہ یہ تو میرے والد کو معبود نہیں مانتی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ چنانچہ اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ کیا تم میرے والد کو خدا نہیں مانتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، میرا خدا تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ جب لڑکی نے دو ٹوک جواب دیا تو وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آپ کے محل میں آپ کے زیر سایہ رہنے والی عورت آپ کو تو خدا ہی نہیں مانتی۔ بیٹی کی بات سن کر فرعون غصے میں آ گیا، چنانچہ وہ کہنے لگا کہ میں دربار میں جا کر اس عورت کو ایسی سزا دوں گا کہ یا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو رب کہنے سے باز آ جائے گی یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اب جب فرعون اپنے دربار میں پہنچا تو اس نے اس عورت کو اپنے پاس بلوایا اور کہنے لگا کہ دیکھو تم موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو اللہ کہنا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی کہ ہرگز نہیں، تو اس نے اس کو بڑا ڈرایا اور دھمکایا، مگر وہ کہنے لگی کہ اب تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ان کا یہ دلیرانہ جواب سن کر فرعون نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ اس کو زمین پر لٹا دیا جائے، تو انہیں زمین پر لٹا دیا گیا۔ پھر حکم دیا کہ ان کے دونوں ہاتھ پاؤں میں کیلیں گاڑ دی جائیں۔ چنانچہ ان کے پاؤں میں کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں۔ اسی دوران ان کا وزیر آیا اور اس نے فرعون سے کہا کہ اس کی ایک چھوٹی دودھ پیتی بچی بھی ہے، اگر اس کی بیٹی کو اس کے سامنے ہی قتل کر دو تو یہ اپنی ممتا سے مجبور ہو کر آپ کی بات مان جائے گی۔ اور اس کے بعد فرعون نے اس کی دودھ پیتی بچی کو گھر سے بلوایا اور اسے اس کے سینے پر لٹا دیا۔ پھر فرعون کہنے لگا کہ میں تمہاری اس بچی کو تمہارے سامنے قتل کر دوں گا۔ اس باندھی نے فرعون کی اتنی بڑی دھمکی سن کر بھی یہ کہنے لگی، اب میرے دل میں اطمینان اتنا بھر چکا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے بیٹی کو خون میں لت پت
तड़पता तो देख सकती हूँ मगर मैं अपने ईमान का खून नहीं देख सकती। चुनाचा बांदी के सीने पर ही इनकी मासूम बच्ची की गर्दन काट दी गई। जब वो बच्ची ठंडी हो गई तो फिरौन कहने लगा कि अब हम तुम्हारे को कत्ल कर देंगे। तो वो कहने लगी कि जो मर्जी चाहे कर लो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। बिल आखिर इस जालिम ने इनको भी शहीद कर दिया। इसके बाद फिरौन जब हजरत मरशता को शहीद करवा कर अपने घर पहुंचा तो अपनी बीवी हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगा कि आज ये वाकया पेश आया है कि मैंने एक औरत को इबरतनाक सजा दी है। इसकी बीवी ने कहा, अरे तेरा नाश हो, तूने एक मासूम बच्ची की जान भी ली और एक बेगुनाह औरत को भी कत्ल किया। फिरौन कहने लगा कि मैंने इसको इबरतनाक सजा दी है कि वो मुझे खुदा नहीं मानती थी। ये सुनकर हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि खुदा तो मैं भी तुझे नहीं मानती, बल्कि तू एक आम इंसान है। जब फिरौन ने ये सुना तो हैरान रह गया, क्योंकि इसे हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ी मोहब्बत थी। हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने बड़ा हुस्न जमाल अता किया हुआ था। फिरौन ने इन्हें पूरी कौम की औरतों में से चुनकर इनके हुस्न की वजह से अपनी बीवी बनाया था। इस वजह से वो इनसे बड़ी मोहब्बत करता था। चुनाचा फिरौन कहने लगा कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो। वो कहने लगी कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ कि तू झूठा है। परवरदिगार तो वही है जिसका पैगाम लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। फिरौन ने ये बात सुनी तो इसे बड़ा गुस्सा आया, लिहाजा कहने लगा कि मैं तुम्हारा भी वही हशर करवाऊंगा जो मैंने मशता का करवाया है। वो कहने लगी, तू जो चाहता है कर ले, मेरे साथ मेरा परवरदिगार है। अब मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं अपने परवरदिगार को कभी नहीं छोड़ सकती, अलबत्ता तेरी हर चीज को लात मार सकती हूँ। जब इसने ये बातें सुनी तो वो फिर दोबारा आया और इसने फिर लोगों को जमा किया और कहने लगा कि देखो कितनी बड़ी साजिश हो गई है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरी बीवी को भी बहका लिया है। आज मैं इस औरत को या तो मार डालूंगा या फिर वो अपनी बात से हट जाएगी। चुनाचे इसने हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को गिरफ्तार करवा लिया। एक वक्त था कि वो मलका थी और इनके इशारे पर नौकर चाकर भाग भाग कर काम किया करते थे। लोग एहतराम की वजह से इनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे और आज वो फिरौन के दरबार में मुल्जिम बनकर खड़ी हुई हैं, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में। फिर फिरौन हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगा कि तू इतनी आलीशान महल में रहती है, इतनी नेमतों में पली है और मैंने तुझे अपनी महबूबा बनाया, लेकिन मैं सब कुछ तुझसे छीन लूंगा। बेहतर ये है कि तू अब भी बाज आ जा और मुझे अपना खुदा मान ले। हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी कि मैंने अब ईमान कबूल कर लिया है, इसलिए मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। चुनाचा फिरौन ने फैसला कर लिया कि मैं इसे सजा दूंगा। इसके बाद फिरौन ने सबसे पहले सजा के तौर पे इन्हें रुस्वा करने का फैसला किया। चुनाचे इसने कहा कि सबसे पहले इस औरत के जिस्म से लिबास उतार दिया जाए। अब सोचने की बात यह है कि किसी मर्द को कहा जाए कि तुझे लोगों के दरमियान बेलिबास कर देंगे तो इसको कैसी शर्म आती है और वो चाहता है कि जमीन फट जाए और इसमें मैं समा जाऊं। औरत के अंदर तो अल्लाह ताला ने शर्म और हया ज्यादा रखी होती है। फिरौन ने इसके जिस्म से लिबास उतरवा दिया और वो कैसी सूरत हाल का शिकार हुई। एक तरफ ईमान है और दूसरी तरफ इम्तिहान है।
लेकिन वो डटी रहीं। फिरौन ने कहा, अच्छा अगर अब भी नहीं मानती तो मैं तुझे इस तरह का अजाब दूंगा। चुनाचे फिरौन ने कहा कि इसका मुंह मेरे महल की तरफ करके लिटा दो, ताकि आखिरी वक्त भी निगाहें इसकी मेरे महल पर लगी रहें और इसका जहन में भी ये बात रहे कि मैंने इन नेमतों को ठुकराया। लिहाजा फिरौन के हुक्म के मुताबिक लिटा दिया गया। इनके हाथों और पैरों में लोहे की कीलें गाड़ दी गईं ताकि वो हिल ना सकें। इसके बाद फिरौन ने लोगों को बुलाकर कहा कि इसके जिस्म से खाल उतार दो। इस जालिम ने जिंदा के जिस्म से खाल उतरवा दी, वो भी औरत नाजुक बदन, मगर वो इस पर बर्दाश्त करती रहीं। इन्हें अल्लाह के नाम पर तकलीफ दी जाती रही। इस तरह इनके जिस्म से खाल को अलग कर दिया गया। अल्लाह की शान देखें कि वो अभी भी जिंदा थीं, मगर जिस्म जख्म बन चुका था। फिरौन का दिल अब तक ठंडा नहीं हुआ था। चुनाचे वो कहने लगा कि मिर्चें लाओ और इसके पूरे जिस्म पर मिर्चें छिड़क दो। हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म पर मिर्चें डाल दी गईं। वो मछली की तरह तड़पने लगी। इस तड़पने की हालत में उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर एक दुआ मांगी कि ए अल्लाह, फिरौन का महल सामने है और वो कहता है कि हमने तुम्हें इस महल से निकलवा दिया, आज के बाद तुम इस महल में नहीं जा सकोगी, इसलिए ए अल्लाह मुझे इस महल के बदले जन्नत में तेरे पास एक घर चाहिए और मुझे फिरौन और इसके अमल से निजात अता फरमा। अल्लाह ताला ने इसी हाल में इनको शहादत के मर्तबे में फाइज फरमाया और जन्नत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा बना दिया। नाजरीन, माजी में लोगों ने कैसी कैसी कुर्बानियां देकर अपने ईमान को बचाया है। जुल्म के पहाड़ सहकर लेकिन ईमान का सौदा ना किया। हर बातिल ताकत से टकरा गए लेकिन अल्लाह को नाराज ना किया। आज गए गुजरे दौर में हमसे बहुत छोटी छोटी कुर्बानियां मांगी जाती हैं। क्या हम इतने एहसान फरामोश और इतने गए गुजरे हो गए हैं कि 5 वक्त की नमाज भी ना पढ़ सकें? अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल पाक इस्लाम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।